A very warm welcome, dear students. In the previous video lectures, we discussed about three different type of instruction categories that are there in 8085 microprocessor. The first category was data transfer group of instructions. The second that we discussed was arithmetic group of instructions, and the third was logical group of instruction. Now the fourth category is branching group of instructions, right? Branching group of instruction means in which the control of the microprocessor get shifted to some other place. That means a branch will be there. Say this is a program that is running, right? And now suppose using this instruction, suppose the control of the microprocessor gets shifted to this. This is called branching. That means after executing, say, this instruction, after executing this instruction, the control of the microprocessor gets shifted back to this particular instruction. Or after executing this instruction, suppose the control of the microprocessor gets shifted to this memory location. This is also called branch. ये क्या हो गई? एक branch. ये क्या हो गई? एक branch. In some other cases, especially when an interrupt occurs, suppose the program is being executed by the microprocessor, and say at this place or at this instruction the interrupt occurs. So what is the normal course of action when an interrupt occurs? The address of the next instruction is saved in the stack. Yes? Okay. And the stack top will be pointed by stack pointer. That means whatever address that is stored in the stack top will be pointed by stack pointer. That means the microprocessor has the track of that address from where it has to resume the operation. That means microprocessor ने जहां से अपना ऑपरेशन को रिज्यूम करना है, that means जहां से प्रोग्राम को दोबारा से एग्जीक्यूट करना है, उस एड्रेस को कहां स्टोर कर दिया गया? स्टैक पॉइंटर में, स्टैक टॉप में. और स्टैक टॉप के उस एड्रेस को कौन पॉइंट करता है? स्टैक पॉइंटर. नाउ जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही होती है, दैट मीन्स द इंस्ट्रक्शन दैट इज करंटली बीइंग एग्जीक्यूटेड विल बी एग्जीक्यूटेड फर्स्ट. पहले वो इंस्ट्रक्शन पूरी एग्जीक्यूट हो जाएगी. उसके बाद जिस कार्य के लिए इंटरप्ट जनरेट हुआ होता है, राइट, से फॉर डेटा ट्रांसफर, तो माइक्रोप्रोसेसर का कंट्रोल उस लोकेशन पे शिफ्ट, उस एड्रेस पे शिफ्ट कर जाएगा जो एड्रेस यहां मेंशन है. से कॉल 2030. So this is a subroutine call and that is there at this location 2030. इस लोकेशन पे माइक्रोप्रोसेसर का कंट्रोल शिफ्ट हो जाएगा. Why? Because there the subroutine is. वहां सबरूटीन है. देन माइक्रोप्रोसेसर सबरूटीन को एग्जीक्यूट करेगा और रिटर्न के थ्रू वापस आएगा. किस एड्रेस पे वापस आएगा? जो एड्रेस यहां स्टैक में स्टोर्ड है. सो वी ऑल नो अबाउट द प्रोसेस ऑफ इंटरप्ट. What is the normal course of action? So what I am trying to convey here, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आपको? मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि इस कंडीशन में भी ब्रांचिंग हुई, ये सबरूटीन एग्जीक्यूट हुई, लास्ट में आपको आरईटी इंस्ट्रक्शन मिली और आरईटी इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूट होने के बाद वापस आप उसी जगह पे आ गए जहां से आपने आप आ गए, मींस माइक्रोप्रोसेसर आ गया जहां से माइक्रोप्रोसेसर ने प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को छोड़ा था. दैट मीन्स ये एग्जीक्यूशन, यहां पर इंटरप्ट जनरेट हुआ तो माइक्रोप्रोसेसर यहां शिफ्ट कर गया, यहां पर उसको सबरूटीन मिला. यस, उस सबरूटीन को एग्जीक्यूट किया गया आरईटी इंस्ट्रक्शन के थ्रू, वापस उस इंस्ट्रक्शन पे आगे जहां से प्रोग्राम छूटा हुआ था, यहां से छूटा हुआ था, यहां वापस आ गया. सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ब्रांच. आपको दिख रहा होगा जैसे पेड़ की शाखाएं होती हैं वैसे ये ब्रांच होगी, राइट? तो इस तरीके से, सो ऑल दीज इंस्ट्रक्शन कम अंडर विच कैटेगरी? ब्रांचिंग कैटेगरी. ये सारी इंस्ट्रक्शन किस कैटेगरी में आती है? चाहे जंप हो, चाहे कॉल हो, चाहे रिटर्न हो, ऑल दीज इंस्ट्रक्शंस कम अंडर ब्रांचिंग कैटेगरी. ओके, नाउ वी शैल डिस्कस ऑल दीज इंस्ट्रक्शन वन बाय वन, right? So jump is one category,
of instruction, call is another category of instruction, and RET, that is return, is another category of instructions. One more important point here, that all these three instructions, jump, call and return, are classified further into two categories. इन तीनों को भी हम फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. वो कौन कौन सी कैटेगरीज हैं? अनकंडीशनल जंप, कंडीशनल जंप, अनकंडीशनल कॉल, कंडीशनल कॉल, अनकंडीशनल रिटर्न, कंडीशनल रिटर्न. Yes, that means unconditional and conditional, right? This is unconditional, JMP, that means jump to this address. When this instruction will be executed, the control of the microprocessor will be shifted to this address. कोई भी एड्रेस हो सकता है. से मैंने लिख दिया JMP 2500H. जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी तो माइक्रो प्रोसेसर का कंट्रोल कहां शिफ्ट हो जाएगा? इस एड्रेस पे, ये जो एड्रेस दिया हुआ है. जंप कौन करेगा? द कंट्रोल ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर. हम कई बार बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर जंप करेगा, तो माइक्रो प्रोसेसर के जंप करने का मतलब अब कंट्रोल कहां शिफ्ट हो जाएगा माइक्रो प्रोसेसर का? इस एड्रेस पे. इस एड्रेस पे जो भी उसको मिलेगा, चाहे सबरूटीन हो या चाहे कोई इंस्ट्रक्शन, उसको वो एग्जीक्यूट करेगा. व्हाई? बिकॉज द प्राइमरी टास्क ऑफ माइक्रो प्रोसेसर इज टू एग्जीक्यूट. माइक्रो प्रोसेसर का काम क्या है? मेनली काम क्या है उसका? एग्जीक्यूट करना, एग्जीक्यूशन. तो वो एग्जीक्यूशन करेगा इस एड्रेस पे जंप करने के बाद, राइट? सो दिस इज अनकंडीशनल जंप. Irrespective of whatever microprocessor is doing, if this instruction occurs, then microprocessor will have to be shifted to this location, right? So ये हो गया unconditional jump. Now these are conditional jumps. अगर हम ऐसे देखें तो ये सारी क्या है हमारी? ये conditional jumps हैं. इसमें एक condition add हो जाएगी. Say jump if carry, जंप इफ नो कैरी या नॉट कैरी. तो जब जंप कब करना है? जब कैरी जनरेट हो, ऑपरेशन में कैरी जनरेट हो. अगर कैरी जनरेट होता है तो इस एड्रेस, ADDR मींस एड्रेस, 16 बिट का एड्रेस होगा, इस एड्रेस पे माइक्रोप्रोसेसर का कंट्रोल शिफ्ट हो जाएगा. अगर कंडीशन ट्रू नहीं है, कैरी जनरेट नहीं होता है, तो जंप नहीं करेगा. JNC कब जंप करना है? जब कैरी जनरेट ना हो. जंप इफ नो कैरी, जब कैरी नहीं है, कैरी जनरेट नहीं हुआ, तब जंप करना है. JP जंप इफ रिजल्ट इज पॉजिटिव. JM जंप इफ रिजल्ट इज माइनस. JPE जंप इफ पैरिटी इज इवन. P फॉर पैरिटी, E फॉर इवन, J फॉर जंप. जंप इफ पैरिटी इज इवन. जंप इफ पैरिटी इज ऑड. जंप इफ रिजल्ट इज 0. जंप इफ नॉट 0. तो 8 कंडीशंस आपको समझ में आ गई. JC जंप इफ कैरी, JNC जंप इफ नो कैरी, JP जंप इफ पॉजिटिव, JM जंप इफ माइनस, JPE जंप इफ पैरिटी इज इवन, JPO जंप इफ पैरिटी इज ऑड, JZ जंप इफ 0, JNZ जंप इफ नॉट 0. तो ये 8 कंडीशंस हैं. अगर ये कंडीशंस ट्रू होती हैं, then the control of the microprocessor is shifted to these addresses. जो एड्रेस भी यहां पर होगा, वो एड्रेस कितने बिट का होगा? 16 बिट का. ठीक है, तो माइक्रोप्रोसेसर का कंट्रोल यहां शिफ्ट हो जाएगा, राइट? सो दिस वाज अनकंडीशनल जंप एंड दिस इज कंडीशनल जंप. यस, सपोज मैं आपको एक एग्जांपल दूं अपने डेली लाइफ में. सपोज एक फ्लोर, एक प्लेटफॉर्म हमने बनाया है. वो जो अपना सरफेस है, सरफेस से 3 फीट ऊपर है, या से 4 फीट, या से 3 मीटर ऊपर है. I said to you jump. I said to you jump. अब वो 3 मीटर है कि 3 फीट है, आपको जंप करना ही करना है. दैट इज कॉल्ड अनकंडीशनल जंप. कोई कंडीशन नहीं, आपने जंप करना ही करना है, राइट? नाउ कंडीशन, कोई भी कंडीशन हो सकती है. जंप इफ हाइट इज लेस देन 2 मीटर्स. जंप तब करो जब हाइट 2 मीटर से कम है. जंप तब करो जब आपने स्पोर्ट्स शूज पहने. वो एक कंडीशन मैंने लगा दी, राइट? जंप इफ यू आर फिजिकली फिट. जंप तब करो जब आप फिजिकली फिट हो. तो कहने का मतलब क्या है? एक बिना कंडीशन के है, जंप करना ही करना है, चाहे जूते पहने हो ना पहने हो, चाहे फिजिकली हम फिट हो या ठीक फील कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, चाहे 2 मीटर हो, 3 मीटर हो, 5 मीटर, कुछ भी हमने जंप करना है. अनकंडीशनल. कंडीशनल
वो चीज़ यहाँ आ गई। समझ में आ गई होगी बात, मुझे लगता है मैंने एक लाइव एग्जाम्पल आपको दिया, राइट। सो दिस इज अबाउट जंप। अब एक चीज, अब हम ये बोलते हैं कि भाई ये किस एड्रेसिंग मोड की इंस्ट्रक्शंस होंगी, ये जंप। तो अब जरा गौर से देखिए, जंप और एड्रेस, जंप के आगे हमने क्या दिया है, एड्रेस दिया है। ये एड्रेस किस में लोड होगा, ये एड्रेस लोड होगा पीसी, दैट मींस प्रोग्राम काउंटर। क्यों? वो इसलिए लोड होगा क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर वही इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करता है जिसका एड्रेस प्रोग्राम काउंटर में होता है। What is program counter? Program counter is a 16-bit special purpose register which stores the address of the instruction that is to be executed next. जो इंस्ट्रक्शन नेक्स्ट एग्जीक्यूट होने वाली उसका एड्रेस कहां आ चुका होता है, प्रोग्राम काउंटर में। वो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने चली जाती है तो प्रोग्राम काउंटर एक से इंक्रीमेंट हो जाता है, बढ़ जाता है उसमें, तो वो अगले मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करती है। फिर उस मेमोरी लोकेशन पे इंस्ट्रक्शन आती है, वो एग्जीक्यूट होने चली जाती है, फिर नेक्स्ट, ऐसे चलता रहता है जब तक प्रोग्राम कंप्लीट नहीं होता या फिनिश नहीं होता। सो जब हम लिखते हैं जंप और ये एड्रेस, तो ये एड्रेस किस में स्टोर हो जाएगा, प्रोग्राम काउंटर में, और फिर प्रोग्राम काउंटर में जो भी आएगा उस एड्रेस पे माइक्रो प्रोसेसर का कंट्रोल शिफ्ट हो जाएगा। अब बात ये आ रही है कि भाई ये कौन से एड्रेसिंग मोड में है। पीसी के लिए अगर मैं प्रोग्राम काउंटर को देखूं, ये एक 16 बिट का रजिस्टर, उसके लिए ये 2500 क्या है, व्हाट इज दिस 2500, उसके लिए 2500 डेटा है। पीसी अगर मैं बोलूं प्रोग्राम काउंटर, तो पीसीएच होगा एक, पीसीएल होगा। पीसीएच मतलब प्रोग्राम काउंटर की हायर बाइट और पीसीएल मतलब प्रोग्राम काउंटर की लोअर बाइट। अब यह है 2500H, तो हायर बाइट होगी 25, वो प्रोग्राम काउंटर की हायर में आ जाएगी, और ये क्या हो गया पीसीएल 00H। यस, तो हायर बाइट 25, लोअर बाइट 00। तो सारा किस में लोड हो गया, पीसी। ये पीसी का ही है, प्रोग्राम काउंटर की हायर बाइट और लोअर बाइट, क्योंकि 16 बिट का है इसलिए हमने उसको दो अलग अलग बाइट्स में डिवाइड कर लिया, हायर बाइट और लोअर बाइट। हायर बाइट में ये, लोअर बाइट में। तो अब हायर बाइट में क्या लोड हो जाएगा 25, लोअर बाइट में क्या लोड हो जाएगा ये पीसी, पीसीएच में क्या लोड हो जाएगा 25 हेक्साडेसिमल में, और पीसीएल लोअर बाइट में क्या लोड हो जाएगा 00H। कहने का मतलब क्या है, ये 25 पीसीएच के लिए क्या है, प्रोग्राम काउंटर के लिए क्या है, डेटा। 00 भी प्रोग्राम काउंटर के लिए क्या है, डेटा। तो जब इंस्ट्रक्शन में ऑपकोड की बाइट के बाद डेटा दिया होता है, वो इंस्ट्रक्शन कहलाती है इमीडिएट एड्रेसिंग मोड की। वो इंस्ट्रक्शन किस एड्रेसिंग मोड में आती है, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड में। तो ये जो इंस्ट्रक्शंस होंगी जंप वाली इंस्ट्रक्शन, ये किस एड्रेसिंग मोड में आएगी, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड में। चाहे वो कंडीशनल जंप हो, अनकंडीशनल जंप हो या कंडीशनल जंप हो, सारी इंस्ट्रक्शंस किस में आएंगी, दिस इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। ओके, राइट। अब नेक्स्ट इज हाउ मेनी टी स्टेट्स शैल बी देयर। टी स्टेट्स कितनी होंगी जंप के लिए, अनकंडीशनल जंप के लिए जो टी स्टेट्स होंगी वो होंगी 10 टी स्टेट्स, और कंडीशनल जंप के लिए जो होंगी वो होंगी 7 और 10। 7 और 10। 7 और 10 का मतलब क्या होता है, कई लोग कंफ्यूज होते हैं, सर 7 और 10 क्या मीनिंग है इसका, व्हाट डू यू मीन बाय 7 और 10। यस, इफ कंडीशन इज फुलफिल्ड देन 7 टी स्टेट्स, अगर कंडीशन फुलफिल नहीं हुई देन 10 टी स्टेट्स, ये मतलब इसका। अब इफ कंडीशन इज फुलफिल्ड 7 टी स्टेट, कंडीशन इज नॉट फुलफिल्ड 10 टी स्टेट, तो इसको हम लिखते हैं 7 टी स्टेट्स ऑब्लिक 10 टी स्टेट। तो इनकी टी स्टेट्स भी मैंने आपको बता दी। ये कितनी बाइट इंस्ट्रक्शन है अगर आप गौर से देखें, ऑपकोड की बाइट देन एड्रेस की बाइट। कितनी एड्रेस की, 16 बिट एड्रेस मतलब 2 बाइट्स। तो 1 इज ऑपकोड बाइट, ऑपकोड बाइट प्लस 2 एक्स्ट्रा या एड्रेस बाइट्स, कुछ भी लिख सकते हो, एक्स्ट्रा लिख लो या ब्रैकेट में एड्रेस लिख लो, एड्रेस बाइट्स, बाइट्स। सो दैट मींस 1 + 2, 1 ऑपकोड बाइट प्लस, तो 1 + 2 कितने हो गए, 3 बाइट इंस्ट्रक्शन। ये हो चाहे ये हो, इसमें भी क्या है, ऑपकोड प्लस एड्रेस 16 बिट। सो ये सारी इंस्ट्रक्शंस कितने बाइट की होगी, 3 बाइट इंस्ट्रक्शंस होगी। और चौथा पॉइंट, नन ऑफ द फ्लैग्स आर अफेक्टेड। कोई भी फ्लैग ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन में अफेक्ट नहीं होता है, जंप इंस्ट्रक्शन में अफेक्ट नहीं होता है, राइट। तो चारों चीजें बता दी, कितनी टी स्टेट्स बता दी, किस एड्रेसिंग मोड में आएगा ये बता दिया, कौन से फ्लैग इफेक्ट होंगे, कोई भी फ्लैग इफेक्ट नहीं होगा ये बता दिया, और यस इसके बारे में मैंने आपको सारा बता दिया। अब नेक्स्ट आते हैं हम कॉल।
नेक्स्ट आते हैं हम कॉल के बारे में। कॉल एड्रेस, दिस इज 16 बिट। जनरली ये इंस्ट्रक्शन कहां यूज होती है? व्हेन एन इंटरप्ट इज इनिशिएटेड बाय एनी पेरिफेरल डिवाइस थ्रू INTR पिन। जब INTR पिन का यूज करके कोई भी पेरिफेरल डिवाइस इंटरप्ट इनिशिएट करती है या इंटरप्ट जनरेट करती है, तो उस समय कॉल इंस्ट्रक्शन वो यूज करती है। कॉल इंस्ट्रक्शन इज यूज्ड टू कॉल द माइक्रोप्रोसेसर एट द सबरूटीन एड्रेस। कॉल इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है? कॉल किसको करना है? कॉल करो माइक्रोप्रोसेसर को। कहां कॉल करो? उस सबरूटीन के एड्रेस पे जो ये एड्रेस दिया हुआ है आपको। यस, सो दिस इज द एड्रेस वेयर द माइक्रोप्रोसेसर इज बीइंग कॉल्ड, जहां माइक्रोप्रोसेसर को कॉल किया जा रहा है इंटरप्ट जनरेट करके। इंटरप्ट जनरेट किया, माइक्रोप्रोसेसर ने अपना काम छोड़ा, जो इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा था उसको किया। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस कहां सेव हो जाता है? स्टैक में सेव हो जाता है। उसके बाद माइक्रोप्रोसेसर कहां शिफ्ट कर जाता है? इस एड्रेस पे, जिस एड्रेस पे उसको बुलाया जा रहा है। उस एड्रेस पे क्या मिलता है? सबरूटीन मिलता है। माइक्रोप्रोसेसर उसको एग्जीक्यूट करता है और सबरूटीन के लास्ट में RET इंस्ट्रक्शन होती है, रिटर्न इंस्ट्रक्शन। उसके थ्रू माइक्रोप्रोसेसर वापस उस इंस्ट्रक्शन पे आ जाता है जहां से एग्जीक्यूशन रुका था, यानी जहां से उसने छोड़ा था एग्जीक्यूशन। तो ये मैं आपको प्रोसेस कई बार बता चुका हूं। सो कॉल एड्रेस, ठीक, दिस इज अनकंडीशनल कॉल। दिस इज अनकंडीशनल कॉल। दैट मींस माइक्रोप्रोसेसर को उस लोकेशन पे जाना ही होगा, राइट, इररिस्पेक्टिव ऑफ कंडीशन। कंडीशन का कोई नहीं। तो दिस इज कॉल्ड अनकंडीशनल कॉल। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं कंडीशनल कॉल की। उसके बाद हम बात करते हैं कंडीशनल कॉल की। तो जैसे ये कंडीशंस हैं जंप में, वैसे ही यहां भी कंडीशन है। वहां जंप के लिए J आ गया, यहां कॉल के लिए C आ गया। बाकी यही रहेगा CC, CNC, CP, CM, CPE, CPO, CZ, CNZ। कॉल इफ कैरी, कॉल इफ नो कैरी, कॉल इफ साइन इज प्लस या पॉजिटिव, कॉल इफ माइनस, कॉल इफ पैरिटी इज इवन। यहां देखो मैंने लिखा हुआ है सारा। कॉल इफ कैरी, कॉल इफ नो कैरी, कॉल इफ प्लस साइन, कॉल इफ एन नहीं M, सॉरी M, CM, कॉल इफ माइनस साइन, कॉल इफ पैरिटी इज इवन, कॉल इफ पैरिटी इज ऑड, कॉल इफ 0 और कॉल इफ रिजल्ट इज नॉट 0। सो ऑल दीज कंडीशन, सेम कंडीशन, यही 8 कंडीशन, तो वही यहाँ भी। तो उनके साथ क्या आ जाएगा? एड्रेस। तो अब माइक्रोप्रोसेसर को जो कॉल किया जाएगा या माइक्रोप्रोसेसर कब कॉल होगा? जब वो कंडीशंस ट्रू होंगी। अगर कैरी जनरेट होता है देन द कंट्रोल ऑफ द माइक्रोप्रोसेसर विल बी शिफ्टेड टू दिस एड्रेस। तब माइक्रोप्रोसेसर का कंट्रोल इस एड्रेस पे शिफ्ट होगा। अगले वाले में अगर कैरी जनरेट नहीं होता है, अगले वाले में अगर साइन प्लस है, अगले वाले में अगर माइनस है, अगले वाले में अगर पैरिटी इवन है। सो ऑल दीज कंडीशन विल बी टेस्टेड एंड इफ दोस कंडीशन होल्ड ट्रू, अगर वो कंडीशन ट्रू होती है, देन द कंट्रोल ऑफ द माइक्रोप्रोसेसर विल बी शिफ्टेड टू दैट और दोस लोकेशंस, एड्रेसेस। ठीक हो गया? तो ये आ गया। वहां JCJ था, यहां कॉल की जगह C आ गया, जंप की जगह J आ गया। अनकंडीशनल JMP, अनकंडीशनल कॉल CALL। ठीक है? तो अब ये किस एड्रेसिंग मोड में आते हैं? ये भी इमीडिएट एड्रेसिंग मोड है। क्यों? क्योंकि यहां पर भी क्या हो गया? कॉल 16 बिट एड्रेस। आपने कहा कॉल से 2375H, तो ये जो एड्रेस है किस में लोड हो जाएगा? PC में, प्रोग्राम काउंटर में। हायर बाइट 23 PCH में और लोअर बाइट ये PCL में। बताया मैंने जैसे आप, यानी कि प्रोग्राम काउंटर के लिए ये क्या है? डेटा। और जब भी ये 10 ऑपकोड की बाइट के बाद जब डेटा दिया होता है उसको हम कहते हैं इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। तो ये भी इमीडिएट एड्रेसिंग मोड में आ गए। यस, 3 बाइट इंस्ट्रक्शन है। क्यों? क्योंकि ऑपकोड की बाइट के बाद 2 बाइट एक्स्ट्रा है। ऑपकोड की बाइट के बाद एड्रेस 16 बिट का मतलब 2 बाइट एक्स्ट्रा है। तो 1 + 2 3 बाइट की इंस्ट्रक्शन हो गई। नन ऑफ द फ्लैग्स आर अफेक्टेड, कोई फ्लैग इफेक्ट नहीं होता है। चौथा, कितनी टी स्टेट? अगर अनकंडीशनल कॉल है, इन दैट केस 18 टी स्टेट्स। कितनी? 18 टी स्टेट्स। और अगर कंडीशनल कॉल है
9 या 18। कंडीशन ट्रू होगी तो 9 टी स्टेट, नहीं हुई तो 18 टी स्टेट। सो 9 टी स्टेट्स ऑब्लिक 18 टी स्टेट्स। सो दिस इज अबाउट this your conditional call and unconditional call and conditional call, right? Now the third category, that is your RET. Yes, that is your RET, that is return. So these are the conditional return. RC, return if carry. RNC, return if no carry. RZ, return if 0. RNZ, return if result is not 0. RP, result if positive या plus sign. RM, result if minus. Then RPE, result if parity even. Return if parity odd. ठीक है? Yes. आपने इसमें ध्यान दिया होगा, यू मे हैव नोटिस्ड दैट वी डिड नॉट मेंशन द एड्रेस हेयर। हमने एड्रेस मेंशन नहीं किया। व्हाई वी डिड नॉट मेंशन द एड्रेस? हमने एड्रेस को मेंशन क्यों नहीं किया? उसके पीछे एक कारण है। क्यों? क्योंकि रिटर्न होने की जो लोकेशन है दैट इज फिक्स्ड। जो एड्रेस है वो फिक्स्ड है, उसका एड्रेस आपके स्टैक में सेव हो चुका है और उसी एड्रेस पे माइक्रो प्रोसेसर का कंट्रोल वापस रिटर्न होता है। जैसे मैं अगर आपको इसको और एक्सप्लेन करूं, सपोज यहां पर एक इंस्ट्रक्शन आई 2030, सपोज वो 3 बाइट की थी, तो 2030 पे ऑपकोड की बाइट, 2031 पे लोअर बाइट, ऑपकोड बाइट, यहां पर लोअर बाइट, और 2032 पे से हायर बाइट। अब जो नेक्स्ट एड्रेस होगा वो क्या होगा? 2033H, सब H में ही, हेक्साडेसिमल में। ओके, नाउ दिस एड्रेस यहां तक तो एग्जीक्यूट हो ही गया क्योंकि यहां पर इंटरप्ट आ गया, ये तो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी ही होगी, ऑब्वियसली होगी। अब ये जो एड्रेस है, ये एड्रेस कहां सेव हो जाता है? ये हमारा स्टैक में सेव हो जाता है। कहां सेव हो जाता है? सपोज पहले टॉप ये था, तो पहले हायर बाइट होती तो टॉप हो जाएगा हमारा टॉप -1, और हायर बाइट यहां आ जाएगी। हायर बाइट है 2020 यहां स्टोर हो गया, ये कोई भी डेटा हो सकता है, सम डेटा यहां आ गया। उसके बाद टॉप को हम फिर बढ़ा देते हैं, हो जाता है टॉप -2, और यहां पर हमारा क्या आ जाता है? जो लोअर बाइट होती है दैट इज 33H। लोअर बाइट आ गई हमारी यहां और हायर बाइट आ गई हमारी यहां। पहले हायर बाइट पुश होती है स्टैक में, फिर लोअर बाइट पुश होती है। अब जो स्टैक टॉप हुआ है उसको कौन पॉइंट करेगा? हमारा स्टैक पॉइंटर, मैंने आपको बताया। सो दैट मीन्स दिस एड्रेस, ये टॉप -2 जो भी है, यस, तो टॉप -2 जो भी एड्रेस होगा उसको कौन पॉइंट कर रहा है? स्टैक पॉइंटर पॉइंट कर रहा है। और जैसे ही सब रूटीन एग्जीक्यूट हो जाएगी, रिटर्न के थ्रू ये 2033 वापस किसको मिल जाएगा? प्रोग्राम काउंटर को, और माइक्रो प्रोसेसर का कंट्रोल वापस वहीं से शुरू हो जाएगा जब यहां पर लास्ट में आपको RET इंस्ट्रक्शन मिल जाएगी। वो चाहे कंडीशनल हो चाहे अनकंडीशनल हो, उसके थ्रू हमने आना कहां है? आना यही है। दिस एड्रेस इज फिक्स्ड, ये एड्रेस फिक्स्ड है, इसीलिए हम रिटर्न इंस्ट्रक्शन के साथ आगे कोई एड्रेस नहीं रखते। ओके, अच्छा, ये जो इंस्ट्रक्शन आती है ये रजिस्टर इनडायरेक्ट में आती है। 10T स्टेट्स होती हैं अनकंडीशनल रिटर्न की। अनकंडीशनल रिटर्न क्योंकि इसके आगे कोई कंडीशन नहीं है, रिटर्न होना ही होना है। दीज आर कंडीशनल रिटर्न इंस्ट्रक्शंस। इसमें 6T स्टेट या 12T स्टेट कंज्यूम होती हैं। एड्रेसिंग मोड मैंने आपको बता दिया, रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। देन अच्छा, इसका जो साइज है 1 बाइट का साइज है क्योंकि एक्स्ट्रा बाइट है ही नहीं इसमें, 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है, राइट। एंड ऑल्सो नन ऑफ द, इसमें भी कोई फ्लैग इफेक्ट नहीं होता। तो दिस इज अबाउट द रिटर्न इंस्ट्रक्शन, रिटर्न अनकंडीशनल रिटर्न एंड कंडीशनल रिटर्न, राइट। सो वी डिस्कस 3 बेसिक ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शंस: जंप, अनकंडीशनल जंप, कंडीशनल जंप,
कॉल अनकंडीशनल कॉल, कंडीशनल कॉल, एंड थर्ड रिटर्न अनकंडीशनल रिटर्न, कंडीशनल रिटर्न। बोलते हुए जब हम बोलते हैं तब हम इसको रिटर्न बोलते हैं, लिखते हुए RET लिखते हैं, ये ध्यान रखना है आपने। कई बार बच्चे RETURN लिख देते हैं, नो, वाई? बिकॉज द निमोनिक इज RET, उसका सिंबल RET है, तो RET लिखेंगे बोलते समय, हम उसको रिटर्न कहते हैं, राइट? सिमिलरली, so there are 2-3 instructions still remaining in this branching group of instruction, and we shall try to cover those instruction in the coming lecture. And in the coming lecture we shall also discuss about the machine control instruction. machine control instructions की भी हम बात करेंगे, stack instructions की हम बात करेंगे, right? So I hope you understood the concepts. Thanks for watching.